Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rashid Hussain. Today we study about interest and types of the interest. In interest may be defined as the charge for using the borrowed money. It is an expenses for the person who borrows money and income for the person who lends money. Interest is charged on principal amount at a certain rate for a certain period. For example, 10% per year, 4% per quarter, or 2% per month. It means इंटरेस्ट मुझे बोलते हैं जब हम सबसे अमाउंट बारोड करते हैं कहीं से भी कहीं लोन ले लें या फिर प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं तो उस पर हमारा इंटरेस्ट लगता है जैसे 10% भी होता है 4% भी होता है और 2% भी होता है जो भी हम अमाउंट लेंगे कहीं से भी तो उस पर हमारा इंटरेस्ट होगा जस्ट लाइक 10%, 4% और 2%. Now, what is the principal amount? Principal amount means the amount of money that is originally borrowed from an individual or a financial institution. It does not include interest. The interest is charged into two ways. These are ये प्रिंसिपल अमाउंट हम उसे बोलते हैं जो भी हम कहीं से बारोड करेंगे किसी भी फॉर्म से किसी बैंक से और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ये इंक्लूड विदाउट होगा इसमें एक्सक्लूड होगा इंटरेस्ट क्योंकि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे उसके बाद ही उस पर अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से परसेंट के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट को टू वेज से हम करते हैं चार्ज करते हैं. The first is simple interest method and second compound interest method. These methods are briefly explained below. Simple interest method. Under this method, the interest is charged only on the amount originally lent principal amount to the borrower. यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट हम उसे बोलते हैं जो भी हमें चार्जर होगा प्रिंसिपल अमाउंट पे वही होगा क्योंकि जो इंटरेस्ट होगा उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा. इट मींस अ सिंपल इंटरेस्ट. Simple interest continued interest is not charged on any accumulated interest under this method. Simple interest is usually charged on short-term borrowing. It can be easily computed using the formula. This formula is the simple interest where I is a simple interest in dollars. P is a principal amount. This P ये हमारे P जो होगी ये principal amount होगा और small I ये हमारा interest per rate होगा कितना rate होगा according to 3%, 2%, 5% ये I show करेगा और n number of periods. यहाँ पे हमने लिख दिया है कि P is a principal amount, I is the rate of interest and number of periods. Now, graphical representation of the simple interest. Simple interest, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के सिंपल इंटरेस्ट जो भी हमें मिलता है वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है. तो यहाँ पे देखें $50 है तो इज अ पैरेलल. ये हमारा इंक्रीजिंग नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड है कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसी पे इंटरेस्ट होगा. तो यहाँ पे देखें $50 है, यहाँ पे $50, यहाँ पे $50 है. यहाँ पे देखें इंटरेस्ट पेमेंट 50%. इट मीन्स 100 में जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100% है उस पर हम 50% जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा. तो ये ग्राफिकली देखें ये पैरेलल आ रहा है नो एनी डायरेक्शन. यहाँ पे जस्ट पैरेलल हो रहा है. इट मीन फर्स्ट ईयर भी सेम है, सेकंड ईयर भी सेम है, थर्ड ईयर भी सेम रहेगा. तो इसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट. For example, a loan of 10,000 has been issued for 6 years. Compute the amount to be repaid if simple interest is charged at 5% per year. अगर 10,000 हम borrowed करें कहीं से भी लोन ले रहे हैं तो it means this is the principal amount 10,000 and now this is the principal amount. And this is the number of years and value of n and this 5 it means I value of small I. Now the using formula I is equal P into I into n where P principal amount हमें मिला हुआ है 10,000. principal amount की जगह 10,000 लगा और I is the interest per rate
वो हमें 5% है, तो 5% हमने दे दिया। और एन की वैल्यू 6 है, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 6 है। तो यहाँ पे देखिए इस 5% को हमने कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल फ्रैक्शन में। इट मीन्स 5 को हम क्या करेंगे, 5 को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दिस 10,000 into 0.05 into 6 दिस। तो यहाँ पे नोट कर दें कि ये जो हमारे पास 3,000 है, ये हमारा टोटल अमाउंट नहीं है, जस्ट ओनली इंटरेस्ट। अगर हम 10,000 ले रहे हैं तो उस पर 3,000 हमारा इंटरेस्ट पड़ेगा। और ये जो 3,000 है अब आके इसमें प्रिंसिपल अमाउंट में दिस इसमें आके ऐड करेंगे आफ्टर 6 ईयर्स। तो हमें आफ्टर 6 ईयर जो हमें पेड करना पड़ेगा वो होगा टोटल अमाउंट 13,000। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। Now, compound interest method, simply we can say the compound interest, we can say is that इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है तो नेक्स्ट ईयर उस इंटरेस्ट पे हमें फिर से इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर हम उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इट इज़ द बेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट। ये अगर हम कहीं से फिक्सिंग करवा लें, कहीं भी हम फिक्स अमाउंट रखते हैं बैंक में, तो ये हमारे पास बेटर होगा, क्योंकि जो हमारे पास इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, compound interest is a very common. Under this method, the interest is charged on principal plus accumulated interest. The amount of देखें यहाँ पे देखें, the interest is charged on principal। प्रिंसिपल अमाउंट जो भी हमारा होगा उस पर भी मिलेगा, प्लस accumulated इंटरेस्ट जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा accumulated उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। The amount of interest for a period is added to the amount of principal to compute the interest for the next period. Yeah, it means यहाँ पे जो हमें फॉर एग्जाम्पल हम 10,000 ले रहे हैं, तो 10,000 आफ्टर ईयर जो भी हमारा अमाउंट बनेगा इंटरेस्ट वाला, तो उसके जो नेक्स्ट ईयर होगा सेकंड ईयर पे हमें उस पे इंटरेस्ट पे भी हमें मिलेगा इंटरेस्ट। The interest is reinvested to earn more interest. The interest may be compounded monthly, quarterly, semi-annually, or annually. Consider the following example to understand the whole procedure of compounding interest. The interest may be compounded monthly, quarterly. अगर monthly, quarterly है तो it means after 3 months, हर 3 महीने के बाद हमें मिलेगा। Semi-annually it means after 6 months, or annually it means after 1 year. Consider the following example to understand whole. देखिए हमने सिंपल इंटरेस्ट का भी ग्राफ पढ़ा था और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये ग्राफ है। यहाँ पे देखें कंपाउंड इंटरेस्ट में जस्ट लाइक अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो यहाँ पे इंटरेस्ट नो कंपाउंडिंग, अगर कंपाउंडिंग नहीं है तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट लाइक 3,000 का हुआ है। और यहाँ पे देखें ना कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है इट मींस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट द बिग बेनिफिट्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। 10% के हिसाब से हमने लिया हुआ है और 20 ईयर्स के लिए। आफ्टर 20 ईयर्स यहाँ पे देखें 57,000। और यहाँ पे जो इसका जस्ट इंक्रीमेंट जस्ट लाइक 3,000, और हमने कितना है 10% के हिसाब से लिया है 20 ईयर्स के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 1,000। Example of compound interest. Suppose you have deposit $100 with a bank for 5 years at the rate of 5% per year compounded annually. The interest for the first year will be computed on 100 and you will be have 105, 100 plus principal amount 5 plus interest. यहाँ पे देखिए ये 100 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और यहाँ पे जो है 5 इंटरेस्ट उसमें ऐड करेंगे तो ये जो हमारा अमाउंट हो जाएगा 105। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद हमें जो होगा 105 पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। देखें the interest for the second year will be computed on $105 and at the end of the second year you will have 1110
110.25 into 105 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा और जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट मिला है 5.25 दिस 5.25 दिस इंटरेस्ट becomes the principal amount में जो हमें इंटरेस्ट पे ऊपर इंटरेस्ट मिला हुआ है ये 25% वो भी 0.25 वो भी मिला हुआ है. The interest for the third year will be computed on 110.25 and at the end of the third year you will have 115.76. The following table shows the computation for 5 years period of investment. ये सारे के सारे जो हमने theoretical लिखा है तो उसका हमने एक टेबल बना दिया है. नेक्स्ट स्लाइड पे हमने टेबल देखें. ये देखें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना था $100 और उसके ऊपर इंटरेस्ट था 5%. ये इसका फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 5% वो जो हमारा परसेंट बन रही है 5.0. तो हमारे पास जो 100 आ गया प्लस इसमें करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 105. अब जो नेक्स्ट ईयर होगा वो 105 है नॉट 100 क्योंकि अगर देखा जाए तो 5 तो हमारा इंटरेस्ट है ना और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 100 है. बट नाउ इन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड में हम क्या करेंगे कंपाउंड अमाउंट ये जो हमारा इंटरेस्ट 105 पे लगेगा. अब सेम 5% होगा बट 105 पे 5% 105.005 सिमिलरली सो ऑन second year, third year, fourth year, and final year. It is fifth year. Now, under the compound interest system, when interest is added to the principal amount, the resulting figure is known as a compound amount. जो भी हमारा इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट मिलेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसमें हम ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड अमाउंट. In the above table, the compound amount at the end of each year have this table. ये जो हमारे पास लास्ट वाला है ये कंपाउंड अमाउंट है और हर साल जो है ना उस पर कंपाउंड अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता जाएगा नेक्स्ट ईयर. नोटिस दैट the compound amount at the end of year becomes the principal amount to compute the interest for the next year. Use compound amount formula. अगर हम स्टेप बाय स्टेप कर दें तो यही प्रोसेस होगा. अगर नहीं हम कहते हैं कि हम डायरेक्टली कर दें तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास द अबव प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग कंपाउंड अमाउंट इज लेंथी एंड टाइम कंजम्पशन. क्योंकि हम वो 1 ईयर टू ईयर हम करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. तो उसके लिए हमारे पास जनरल एक फार्मूला है फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट which is S is equal to P 1 plus I whole power n, where P is the same principal amount and I is the same interest per rate and n is the same number of period, but only S. This S shows off the compound amount or compound interest. Now we would compute the compound amount in the above एग्जाम्पल यूजिंग कंपाउंड अमाउंट फार्मूला. सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है हमने और उसके जो रिजल्ट आ रहा है देखें 100 into 1 plus 5% raising power 5. तो यहाँ पे देखिए 100 into 1.05 raising power 5 हो गया तो ये हो जाएगा 127.6 1.276 तो ये हो जाएगा 1.27.6. देखिए यहाँ पे देखिए 1.27 127.6 सॉरी 127.6 आया हुआ है और यहाँ पे देखें 1.2763 आया हुआ है. इट मींस सेम. Now we would compute the compound amount in our example using compound amount formula. Once I'm sorry. The compound amount has been computed. The amount of interest earned over the investment period can be computed by the subtracting principal amount from the compound amount. It is shown below. Interest earned over 5 years period 127 जो हमारे पास है कंपाउंड अमाउंट है और उसके बाद 100 अमाउंट जो हमें मिला हुआ था प्रिंसिपल अमाउंट वो हमने काट दिया तो 27.6 जो हमें पड़ेगा वो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट. Compound interest. Now, compound interest is greater than the simple interest. Compound interest is greater than simple interest. The reason is very simple. Under the simple interest system, the system interest is computed only on principal amount, whereas under compound interest system, the interest is computed on principal amount as well as on the accumulated interest. Consider the following example of the explanation of this point. A woman has deposited 6,000
In a saving account, bank pays interest at the rate of 9% per year required. Compute the amount of interest that will be earned over 12 years period. If the interest is simple, if the interest is in compound annually. In the simple interest, I is equal to PIN, where 6,000 and $6,480 in the simple interest, and in the compound interest, this amount becomes 16,878. Now we can already say that the compound interest is greater than the simple interest. यहाँ पे देखेंगे 10,000 और 878 का मार्जिन मिल रहा है, और यहाँ पे हमें simple notice the compound interest is more than the simple interest.